A very good morning all of you. I am Anshul Sharma, your biology teacher, and in this video tutorial we are going to start the new unit in 12th biology syllabus. The name of unit is Genetics and Evolutionary Biology. But before we start the chapter, let's discuss what is genetics. As you know, every living organism reproduces, and by reproduction they produce the new offspring. So when a dog reproduces, it produces a dog. When a cow reproduces, it produces a new cow. And when a human being reproduces, it produces a new human beings. ऐसा कभी नहीं होता कि a cow after reproduction produce a dog or a dog after reproduction produce the new cow. That means by the reproduction, the offspring that are produced, they resembles to their parents. And this is the definition of reproduction. ये रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन भी है, द प्रोसेस बाय विच द लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस द न्यू ऑफस्प्रिंग ऑफ देयर ऑन काइंड. बट you can match the characters of yourself and your parents. You have the two hands, your parents also have the two hands. You have the two eyes, your parents also have the two eyes. You have the two ears and your parents also have the two ears. But it doesn't mean you are the identical copy of your parents. That means you get the character from your parents, you are similar to your parents, but still there are differences between you and your parents. And it is also applicable to all living organisms. जो आपके साथ है वही अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी एप्लीकेबल है. दैट मीन्स रिप्रोडक्शन रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग, बट द ऑफस्प्रिंग नीड नॉट और मे नॉट necessarily resembles to their parents. There are some differences in characteristics of the offspring and the parents, and these differences are called variations. इन्हीं differences को हम variations बोलते हैं. So variations are the degree of differences between the parents and the offspring. So these differences are variation. The next is the heredity. During the reproduction, the human produced human, cow produced cow, and dog produced dog. That means the characters of human being are inherited from parents to offspring, and similar to the cow, the characters transmitted through the parents to the offspring. That means जो offspring पैदा हो रहे हैं वो बिल्कुल parents के जैसे हैं. That means ऑफस्प्रिंग को अपने कैरेक्टर अपने पेरेंट्स से ही मिलते हैं. एंड दिस मैकेनिज्म और दिस प्रोसेस बाय विच द कैरेक्टर्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड हेरिडिटी. After discussing these two definition or these two terms, now we can easily understand the genetics. Genetics is nothing, it is a branch of science in which we do the scientific study of variation and heredity. Now scientific study, you know, the scientific study always involve the question. जब भी हम किसी चीज़ की scientific study करते हैं तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा किस मैकेनिज्म के थ्रू हो रहा है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है. सो द साइंटिफिक स्टडी ऑफ genetics or the scientific study of variation and heredity itself says it is the study in which we want to know how the variation arise, how the heredity happens, how the characters are transmitted from one generation to another generation. And this term genetics was firstly used by a scientist. The name of scientist was William Batson, and this word genetics is coming from a Greek word genos, that means give birth. That means this science is automatically related with the process of reproduction. Now why we are studying genetics, and the name of the chapter that we are going to start today is the principles of inheritance. These principles of inheritance was firstly successfully proposed by a scientist, and the name of scientist was Gregor John Mendel, because he was the first person who successfully proposed the principles of inheritance. The meaning of principle of inheritance, inheritance means transmission of character from one generation to another generation. जिन principles के through character एक generation से दूसरी generation में जाते हैं, उन principles को ही हम प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस बोलते हैं. और मेंडल वो पहला पर्सन था जिसने सक्सेसफुली उन प्रिंसिपल्स को प्रपोज किया जिनके थ्रू कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं. दैट इज़ वाई दिस पर्सन इज दिस साइंटिस्ट इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, क्योंकि इसने सबसे पहले सक्सेसफुली इस फील्ड में काम किया था और उसके बाद एक सेपरेट साइंस की ब्रांच जेनेटिक्स इस्टेब्लिश्ड हो गई. द ग्रेगर जॉन मेंडल वाज अ ऑस्ट्रेलियन मॉन्क. दैट मीन्स मॉन्क मीन्स साधु. ही वाज एन मॉन्क इन चर्च. कोई मैथमेटिशियन बैकग्राउंड नहीं था, और यू कैन से कोई इसका बायोलॉजिकल बैकग्राउंड नहीं था. ही वॉज अ मैथमेटिस्ट, लेकिन बायोलॉजी से कोई रिलेशन नहीं था. बट इन 1856 ही परफॉर्म सम ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी प्लांट.
गार्डन पील प्लांट जो हम सामान्य मटर का पौधा उगाते हैं उसके ऊपर उसने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स किए। हाइब्रिडाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच द हाइब्रिड्स आर प्रोड्यूस्ड। जब भी आप दो अलग अलग वेराइटीज़ के बीच में क्रॉस कराते हैं, the offspring resulting from that cross is known as hybrid and this process is called hybridization. That means मेंडल ने गार्डन पी की अलग अलग वेराइटीज़ के बीच में क्रॉस कराए और उसके थ्रू हाइब्रिड पैदा किया, और इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स को कहा गया हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। साइंस में होता क्या है, व्हेनेवर अ साइंटिस्ट परफॉर्म्ड अ स्टडी आफ्टर डूइंग द रिसर्च, वो उस रिसर्च के आउटकम का एक ड्राफ्ट बनाता है रिसर्च पेपर और फिर उसको पब्लिश करता है ताकि दूसरे साइंटिस्ट भी उसको पढ़ के अपने व्यू दे सके। सिमिलर थिंग डन बाय द मेंडल, उसने एक्सपेरिमेंट्स किए and after doing the experiment he published the result of experiment in the form of a research paper, and the name of research paper was Experiments on Plant Hybrid, and this research paper was published in a journal and the name of journal was Proceeding of Broome Society of Natural History. And in this research paper that he published after the experiments on garden pea, he proposed the 3 principles of inheritance that include law of dominance, law of segregation and law of independent assortment, and these 3 principles of inheritance are popularly known as the Mendel's law. But at that time when Mendel proposed these law, his work was largely ignored. The reason is very simple, because he was a mathematist. He used the mathematical formulas, statistical tool to solve the biological problem. उस समय ये सोचा भी नहीं जा सकता था कि मैथमेटिक्स के प्रिंसिपल्स फॉर्मूलेस के बेस पे बायोलॉजी की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, और मेंडल ने ऐसा किया था, तो वो अप्रोच ही लोगों के दिमाग में नहीं थी, देन दैट इज़ वाई हिज वर्क इज इग्नोर्ड। सेकेंड रीज़न, इन 18th सेंचुरी द मोड ऑफ कम्युनिकेशन एंड द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन वाज वेरी पुअर, बहुत ख़राब थे। आज के समय में आप किसी बाहर के साइंटिस्ट का रिसर्च पेपर पढ़ना चाहते हैं, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट यू कैन ईजिली डू दैट, बट एट द टाइम ऑफ मेंडल पब्लिकेशन ही नहीं हो पाया उसके पेपर का, ताकि ज़्यादा लोग उसके बारे में पढ़ सकें, and these are the some of the reason by which, due to which the Mendel's work was largely ignored. In 1900 there was 3 scientists, the Hugo de Varis, Karl Correns and Eric Testermark. These 3 separately independently work on the Mendel's work. इन तीनों ने अलग अलग मेंडल के काम के ऊपर काम किया and re-established the Mendel's law, and that is why these 3 are responsible or having the credit of rediscovery of Mendelism. चलिए अब बात करते हैं कि मेंडल ने एक्चुअल में काम क्या किया था। मेंडल डिड द हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, और ये तो आपको समझ में आ ही गया है। मेंडल चूज द पाइसम सटाइवम और गार्डन पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। किसी भी साइंटिस्ट को जब कोई एक्सपेरिमेंट करना होता है, ही हैव टू सेलेक्ट द टेस्ट एनिमल, और उसने टेस्ट प्लांट के फॉर्म में पाइसम सटाइवम को सेलेक्ट किया, एंड बाय सेलेक्टिंग दिस प्लांट ही गेट सम ऑफ द एडवांटेजेस। द फर्स्ट इज द पाइसम सटाइवम हैव अ वेरी शॉर्ट लाइफ स्पैन, इट इज़ अ एनुअल प्लांट, कुछ महीनों में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है, एंड दैट इज़ वाई मेंडल गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू स्टडी सेवरल जनरेशन ऑफ दिस प्लांट। अगर उसने किसी लॉन्ग लाइफ स्पैन वाले एनिमल या प्लांट को सेलेक्ट किया होता तो वो 1 या 2 जनरेशन स्टडी कर पाता। सेकेंड इज ईजी टू कल्टिवेट, मटर के पौधे को उगाने के लिए कोई खास मिट्टी या खास न्यूट्रिएंट की जरूरत नहीं है, इट कैन बी ईजिली कल्टिवेटेड ऑन द ऑर्डिनरी सॉइल। बाइसेक्शुअल फ्लावर, मटर में जो फ्लावर होता है वो बाइसेक्शुअल होता है, एंथर और पिस्टल दोनों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है, एंड दैट इज़ वाई इनमें प्रीडोमिनेटली सेल्फ पॉलिनेशन होता है। आगे आप पढ़ेंगे कि मेंडल ने प्योर लाइन्स डेवलप किए, और प्योर लाइन डेवलप होते हैं सेल्फ पॉलिनेशन के थ्रू। तो क्योंकि फ्लावर बाइसेक्शुअल है पाइसम सटाइवम का, अगर आपको क्रॉस कराना है तो आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, अदरवाइज नॉर्मली इनमें सेल्फ पॉलिनेशन ही होना है, तो बिना छेड़े भी वो जो है सेल्फ पॉलिनेशन ईजिली करा पाया। ईजी हाइब्रिडाइजेशन, द फ्लावर स्ट्रक्चर ऑफ पाइसम सटाइवम इज रिलेटिवली वेरी सिंपल, एंड दैट इज वाई इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग कैन बी ईजिली परफॉर्म्ड। द लास्ट इज वेल डिफाइंड डिस्क्रीट कैरेक्टरिस्टिक्स, पाइसम सटाइवम में जो भी कैरेक्टर्स हैं वो वेल डिफाइंड हैं और डिस्क्रीट हैं, दैट मीन्स वेदर द प्लांट इज टॉल और डॉर्फ, बीच की कोई स्टेज इंटरमीडिएट स्टेज नहीं है, वेदर द फ्लावर कलर इज वॉयलेट और वाइट, बीच की कोई भी इंटरमीडिएट स्टेज नहीं है। सो दीज आर द एडवांटेजेस दैट वाज ऑफर्ड बाय द पाइसम सटाइवम प्लांट टू मेंडल, एंड इसकी वजह से भी मेंडल का जो वर्क था वो सक्सेसफुली हो पाया। Now let's discuss what are the characters studied by Mendel. However, Pisum sativum plant में बहुत सारे characters हैं, but उनमें से केवल मेंडल ने 7 characters की study करी थी, and each character is having the 2 variant. Now what is the difference between the character and variant? मेंडल ने अपने research work में character के लिए जो term use करती that was a trait. So each trait studied by Mendel have the 2 variant. For suppose character is eye color could be black, could be brown, so black and brown are the variant of eye color. तो इसी तरीके से उसने पाइसम सटाइवम के 7 कैरेक्टर स्टडी करे और सबके 2 वेरिएंट थे. वन वेरिएंट वाज डोमिनेंट, वन वेरिएंट वाज रेसेसिव. वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज डोमिनेंट एंड रेसेसिव इन फर्दर चैप्टर्स.
So first character was stem length. It could be tall, it could be dwarf. Flower position, it could be axial. Here you can see the stem, and on the stem, on the axillary node, if the flower are appearing, that is the axial position. The recessive variant was the terminal. Here you can see the stem and the terminal of the stem, the flower is appearing. The next character was flower color, that could be violet and white. The pod shape, the dominant was inflated. आपने मटर की ऐसी फलियाँ देखी होंगी जो फूली हुई होती है, they was inflated. And constricted is the recessive variant. आपने मटर की ऐसी ही फलियाँ देखी होंगी जो पिचकी हुई होती हैं. So that was the pod color, that could be green and yellow. The seed color, that could be yellow and it could be green. The recessive one was the green. The seed shape, it could be round. Here you can see the yellow and round dominant seed, and wrinkled, you can see the green and थोड़ा पिचका हुआ सा seed आपको दिखाई दे रहा है, that was a wrinkled shape. So these are the 7 characters of the Pisum sativum and their variant that was studied by Mendel. Now let's discuss how he conduct his experiment, or the method of working of Mendel. Mendel did the cross pollination or artificial pollination. You know, the cross pollination is the pollination between the two different plant, and we are using the artificial term. That means the एजेंसी दैट इज डिसाइडिंग द पेरेंट, क्योंकि यहाँ पे पेरेंट्स कौन होंगे ये डिसाइड मेंडल कर रहा था किसका किसके साथ क्रॉस कराना है. दैट इज दिस पॉलिनेशन इज नॉट अ नेचुरल पॉलिनेशन, इट वाज अ आर्टिफिशियल पॉलिनेशन. सो ही डिड द क्रॉस पॉलिनेशन, दैट मीन्स द पॉलिनेशन बिटवीन द डिफरेंट प्लांट ऑफ डिफरेंट वेरिएंट ऑफ पाइसम सटाइवम. पाइसम सटाइवम के डिफरेंट वेरिएंट्स को शो करने वाले प्लांट्स के बीच में उसने क्रॉस कराए. एंड फॉर दिस क्रॉसिंग ही डेवलप्स द 14 प्योर लाइन ऑफ पी प्लांट विद 1 कंट्रास्टिंग करेक्टर. उसने 14 ऐसी प्योर लाइन डेवलप करी पेयर्स में जिनमें केवल और केवल एक ही करेक्टर का फर्क था. नाउ व्हाट इज प्योर लाइन और ट्रू ब्रीडिंग पेरेंट्स? द प्योर लाइन और ट्रू ब्रीडिंग पेरेंट्स आर ऑलवेज डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन. आप देख सकते हैं अगर मैं एक टॉल पी प्लांट को सेल्फ पॉलिनेट कराऊं तो उसके ऑफ स्प्रिंग हमेशा टॉल ही आएंगे, और उसका फिर से मैं अगर सेल्फ पॉलिनेशन करा दूं तो आगे वाले जनरेशन भी टॉल होगी, और इस तरीके से सोन अगर मैं सेल्फ पॉलिनेशन कराता जाऊं तो हमेशा मुझे टॉल पी प्लांट ही मिलेंगे. सो दैट काइंड ऑफ प्लांट्स, दैट काइंड ऑफ लाइन ऑफ स्प्रिंग इज नोन एज द प्योर लाइन और ट्रू ब्रीडिंग. सो दे आर डेवलप्ड बाय द सेल्फ पॉलिनेशन एंड दे शो द स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस फॉर सेवरल जनरेशन. अगर उनका सेल्फ पॉलिनेशन ही कराया जाता रहे तो वो स्टेबली एक ही कैरेक्टर को कई जनरेशन तक शो करते रहते हैं. So he developed the 14 pure lines or 14 true breeding pre-plant variety in pairs. One of the pair here you can see pairs में उसने डेवलप करा था. यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 पी प्लांट हैं. They are sharing the 6 character yellow yellow green green inflated inflated axial axial, but they are having 1 pair of contrasting character. One of the pea plant is having the tall stem and one of the pea plant is having the dwarf stem. तो इस तरह से उसने पेयर में प्योर लाइन डेवलप करी जो 6 कैरेक्टर के लिए प्योर और 1 के लिए कंट्रास्टिंग करेक्टर वाले थे. इस तरह से उसने पेयर में प्योर लाइन डेवलप करी और फिर इनके बीच में क्रॉस कराए. एंड देन ही कम टू द कंक्लूजन दैट the 3 principles of the inheritance. Now what was the reason of success of Mendel? The first thing, Mendel always studied the inheritance of one character at a time. एक बार में केवल एक ही कैरेक्टर के इनहेरिटेंस के बारे में उसने स्टडी किया जिससे उसका प्रोसीजर ईजी रहा. बाय क्रॉसिंग 1 पी प्लांट विद अनदर पी प्लांट, ऐसा नहीं था कि उसको 3-4 ऑफ स्प्रिंग मिले, उसको कई सारे ऑफ स्प्रिंग मिले और उन्होंने सब ऑफ स्प्रिंग को ग्रो किया, उनके करेक्टर्स को जज किया और उस इतने बड़े डेटा को स्टैटिस्टिकली मेंटेन किया. और स्टैटिस्टिकल टूल यूज़ करने की वजह से उसके रिजल्ट्स की जो एक तरीके से आप बोल सकते हैं जो एफिशिएंसी थी वो ज़्यादा बढ़ गई. मेंडल ने हमेशा ऐसे पेरेंट्स सेलेक्ट किए जो ट्रू ब्रीडिंग थे. मेंडल ने हमेशा उन्हीं पेरेंट्स के बीच में क्रॉस कराया जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को शो करते थे. एंड दीज आर द सम ऑफ द रीजन व्हाई मेंडल गेट द सक्सेस इन प्रपोजिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस. वी विल डिस्कस अबाउट द फर्दर इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ जेनेटिक्स इन फर्दर वीडियो. You can provide the feedback about the audio, video and content quality of the video by the feedback section, where the commenting in the feedback in the comment section. Thank you very much for watching the video.